Students, today we'll study 12th topic of that is chemical equilibrium. See, from this topic only one topic is omitted, that is equilibrium, applications of equilibrium constant. So when it will come across while teaching, I will tell you. So we have to study the whole topic from this. See the introduction. We have learnt earlier that changes can be physical or chemical and reversible or irreversible. All the changes listed above are irreversible physical changes. We also learned earlier that chemical changes can be represented by chemical reactions when the exact chemical composition of reactants and products is known. तो देखो, हमें पता ही है जो चेंजेस होते हैं वो या तो फिजिकल हो सकते हैं या फिर केमिकल या रिवर्सिबल इरिवर्सिबल. नाउ रिवर्सिबल मीन्स the suppose component A is there and component B, two reactants are there and they are reacting and giving C and D. Sometimes what happens, the A and B component are not reacting completely and they are not going to convert into product as a whole. So whatever unreacted substance are there, they will give back the reactant. The reaction which will take place by their own without any influence of external agency, or once it will take place it will not come back to its original position or it will not give back to their reactants, तो उसे irreversible कहते हैं. So we also learned that chemical changes can be represented by chemical reactions. तो chemical changes हम कैसे represent करते हैं? By writing the reactions. That is, component A will react with component B and they will give products. So here in this topic we are going to study the reversible chemical reactions on allowing the reaction for very long time so that the concentration of reactants and products do not vary. The reaction is said to be attained equilibrium. तो हम इस टॉपिक में रिवर्सिबल रिएक्शंस देखने वाले हैं. और रिवर्सिबल मतलब क्या? जो ए और बी सब्सटेंस रिएक्ट होते हैं, दे विल गिव सी एंड डी, बट सी एंड डी अगेन दे विल गिव ए एंड बी. सो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शंस. सो ये रिवर्सिबल रिएक्शंस रिएक्टेंट्स जो है, इनको अगर हम बहुत देर तक वैसे ही रखते हैं तो क्या होता है? दे विल अटेन द इक्विलिब्रियम. So equilibrium is attained. So that equilibrium we are going to study. So reversible reactions. The reaction in the, देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है लेकिन एक्टिविटी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस वगैरह नहीं होते हैं. सो यू विल स्टडी और रीड द एक्टिविटीज़ अगेन. सो हियर once the reactants will react and they will give product and that will not give back into its reactant, that is called as irreversible. देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है. कार्बन विल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन और इट इज़ बर्न. ऑक्सीजन, कार्बन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड. तो एक ही एरो दिया है. सो दिस रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. और नीचे भी है कि देखो KClO3, it is a solid. When it is heated, it will decompose into KCl plus O2. तो ये जो नंबर लिखे हैं, that numbers are written for balancing. So these reactions are called irreversible reaction. They proceed only in single direction until one of the reactants is exhaust. ये कब तक चलते रहते हैं reactions कि जब तक एक substance पूरी तरह से ख़त्म नहीं होता या फिर दोनों भी. तो their direction is indicated by an arrow putting towards the product. reactant से स्टार्ट होता है और प्रोडक्ट तक जाता है एरो. ऑन द कॉन्ट्ररी रिवर्सिबल रिएक्शन प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन. लेकिन रिवर्सिबल रिएक्शंस कैसे होते हैं? बोथ द डायरेक्शंस में होते हैं.
whereas opposite direction reaction and product is reactant called as reverse और backward reaction. देखो रिवर्सिबल में कैसे होता है, दो एरो होते हैं, दोनों भी हाफ एरो होते हैं. देखो सी द एरोज विच इज़ शोन ओवर देयर, टू हाफ एरोज. फुल एरो भी लिख सकते हैं लेकिन मोस्टली हाफ लिखते हैं. Now H2 will react with I2, so they are reactant and give 2 HI. HI is a product, but this reaction is also called as forward. These are the product for the backward reaction. जो हम रिवर्स जाते हैं उसे बैकवर्ड रिएक्शन कहते हैं, फॉरवर्ड है वो फॉरवर्ड रिएक्शन. सो फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शंस, they are denoted with arrow. So here we have the example. The direction from reactant to product is forward reaction. जो नॉर्मली हम रिएक्टेंट लिखते हैं फिर प्रोडक्ट लिखते हैं, तो वो जो डायरेक्शन है वो फॉरवर्ड है. लेकिन जब अपोजिट डायरेक्शन से हम देखते हैं एट दैट टाइम इट इज़ कॉल्ड एज अ रिवर्स और बैकवर्ड डायरेक्शन. A reversible reaction is denoted by drawing in between the reactants and products a double arrow, one pointing in the forward direction and other in the reverse direction. देखो एक आगे की तरफ रिएक्शन को डायरेक्शन को दिखाता है और एक पीछे की तरफ के डायरेक्शन को दिखाता है. H2 plus I2 will give 2HI. Now forward reaction I will read. H2 plus I2 give 2HI. This is a forward direction. और अभी बैकवर्ड डायरेक्शन में देखो 2HI will give H2 plus I2. तो जो जहाँ से स्टार्टिंग होता है वो रिएक्टेंट होता है और जहाँ पे एंड होता है वो प्रोडक्ट होता है. तो जो रिएक्टेंट है पहले रिएक्शन में वो सेकेंड रिएक्शन में प्रोडक्ट बनता है. सो दिस इज़ कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन. Even next example is there. Acetic acid will react with water, undergoes hydrolysis and it will form acetate ion and hydronium ion. Consider an example of decomposition of calcium carbonate. Calcium carbonate when heated strongly decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. If this reaction is carried out in a closed container or open container, what do we observe? So we observed or we performed the experiment at high temperature in a closed vessel. We find that after some time we have some calcium carbonate present. कितना कैल्शियम है, थोड़ा कैल्शियम कार्बोनेट है. If we continue the experiment over a longer period of time at the same temperature, अगर इस कंटेनर को हम बहुत देर तक रखते हैं उसी टेम्परेचर पे, मतलब we have to maintain the temperature condition, and if you continue this, if you keep the things for longer time, we find that the concentration of calcium carbonate, calcium oxide and carbon dioxide are unchanged. तो हमें ऐसे पता चलता है कि इनका जो concentration है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनका कुछ इफेक्ट नहीं हुआ है. The reaction thus appears to have stopped and the system has attained equilibrium. ये ऐसे क्यों होता है? Because the system attains equilibrium. रिवर्सिबल रिएक्शंस में क्या होता है कि सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं एंड दे विल गिव प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट की एक खासियत होती है कि वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं, एंड दिस थिंग्स दे विल डू कंटिन्यूसली, एंड वन स्टेज दे विल अकर. एट दैट टाइम द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कब एग्जिस्ट होता है? व्हेन देयर इज अ रिएक्शन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज देयर. एक्चुअली द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप बट प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन विथ इक्वल रेट्स. अगर हम देखेंगे तो ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होता है, बट
उसी रेट से वो कंटिन्यू होता है, बिकॉज इट अटेंड्स द इक्विलिब्रियम. In other words, calcium carbonate decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide at particular rate. Exactly at the same rate, calcium oxide and carbon dioxide recombine and form calcium carbonate. तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो डिकम्पोज होके हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, लेकिन बहुत देर के बाद क्या होता है, जो प्रोडक्ट है वो फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है. सो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन. सच ए रिएक्शंस डू नॉट गो टू कंप्लीशन एंड अकर इन बोथ द डायरेक्शन साइमल्टेनियसली आर रिवर्सिबल रिएक्शन. तो देखो ऐसे जो रिएक्शंस होते हैं जो कंप्लीट नहीं होते, बिकॉज जो रिएक्टेंट लेते हैं हम वो पूरी तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते. सम क्वांटिटी इज लेफ्ट ओवर देयर. So some quantity is left over there and that's why it will not go for completion. तो ऐसे reactions को हम reversible reactions कहते हैं. A reversible reaction may be represented in general form or terms. A plus B, they are reactant, they will give forward direction में C plus D product. अभी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं तो C और D ये they will act as a reactants and A and B will act as a product. Understood? So double arrow indicates that the reaction is reversible. Consider the reaction of decomposition of calcium carbonate occurring in an open system or open container. तो देखो जो डिकम्पोजिशन है कैल्शियम कार्बोनेट का कि वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है. अगर उस रिएक्शन को हम ओपन सिस्टम में लेंगे या फिर कंटेनर में लेंगे तो क्या होगा. नाउ व्हाट विल हैपन, वी हैव सीन दैट ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड कैन एस्केप अवे, सो वी कैन ऑब्टेन बैक कैल्शियम कार्बोनेट. नो, कैन वी ऑब्टेन बैक कैल्शियम कार्बोनेट? नो. सी, अगर हमने ओपन कंटेनर में रखा तो क्या हो सकता है, इफ़ यू सी दैट ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप, तो अगर हमने कैन वी ऑब्टेन बैक कैल्शियम कार्बोनेट, अगर डिकम्पोजिशन में से एक कंपाउंड हवा में मिक्स हो गया तो क्या हमें वो रिएक्टेंट फिर से मिलेगा? नो, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एस्केप्ड. अगर होता तो फिर से वो कंबाइन होके मिल जाता, अगर नहीं है तो नहीं मिलेंगे. सच ए रिएक्शन इज इरिवर्सिबल. तो इसे कहते हैं इरिवर्सिबल. इरिवर्सिबल मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव बैक इनटू इट्स रिएक्टेंट विच अकर्स ओनली इन वन डायरेक्शन, नेमली फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. एक ही डायरेक्शन में होते हैं ये, रिएक्टेंट से स्टार्ट होते हैं प्रोडक्ट तक एंड हो जाते हैं. So such reactions are called as general reaction. Calcium carbonate will give calcium oxide plus carbon dioxide. और S लिखा है because it is in solid state. Heat लिखा है because we have to heat. ये conditions होती है, एरो पे लिखा जाता है. और कैल्शियम ऑक्साइड है ये भी सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैसियस में मिलता है. सो गैसियस में मिलता है, इसका मतलब इट विल इवॉल्व इन द एयर. सो इफ़ यू डन द रिएक्शन इन द क्लोज कंटेनर देन वी कैन ट्रैप द कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड. इफ़ यू कीप ओपन देन वी कैन नॉट ट्रैप द कार्बन डाइऑक्साइड. सो in an open container the reaction is irreversible, but if we done this in a closed container then it will be reversible. देखो कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा, वो देगा आपको कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अगर हमने इनको क्लोज कंटेनर में रख दिया तो कार्बोनेट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इवापोरेट नहीं होगा, तो वो फिर से कंबाइन होकर हमें कैल्शियम कार्बोनेट देता है. इसीलिए ये रिएक्शन रिवर्सिबल है. अबो रिएक्शन इरिवर्सिबल है. वाई? बिकॉज द अबो रिएक्शन इज डन इन द ओपन कंटेनर एंड दिस रिएक्शन इज मेड टू हैपन इन क्लोज कंटेनर.
So here they have given फिजिकल इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस. तो कैसे होता है देखो, आपको एक एग्जांपल दिया गया है, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. सी द दिस. Let us now look at the reversible physical process of evaporation of liquid water into water vapor in a closed container or closed vessel. So now what we are going to see here, that is equilibrium. Reversible physical process of evaporation. देखो, when water will boil, it will continuously convert into vapor, and if you cool the vapors, it will give back into liquids. So initially there is practically no vapors in the vessel. तो ये देखो, दो जार लिया है जो उनको बंद करके रखा है, जिसमें पानी है. इनिशियली वाटर इज देयर एंड आफ्टर दिस later vapors are this many things. So initially there is practically no vapors in the vessel. When liquid evaporates in a closed container, the liquid molecules escape from the liquid surface into वेपर फेस, बिल्डिंग अप वेपर प्रेशर. देखो, शुरू में तो पानी के वेपर्स नहीं बनते हैं, इसीलिए वहाँ पे बहुत कम वेपर्स है फर्स्ट कंटेनर में, या फिर इट इज़ रिटन इनिशियली. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, वाटर विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग. आप ऐसे भी ओपन करते हो तो धीरे धीरे सनरेज में इवेपोरेट हो जाते हैं. सो यू विल फाइंड दैट so much water vapors are formed in a closed container and the liquid molecules escape from the liquid surface. liquid से surface से वो निकल जाते हैं and they will building up into vapor pressure. They also condense back into liquid state. वो ठंडे होने के बाद फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. पहले पानी है, फिर इवेपोरेट होके वाटर वेपर्स बनते हैं, फिर वेपर्स जो है उन कंडेंस होने के बाद लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल रिएक्शन, और वी कैन से हियर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड. सो इज हाई एंड द रेट ऑफ कंडेंसेशन इज लो. देखो, शुरू में कंडेंसेशन जो है वो ज़्यादा रहता है और कंडेंसेशन कम रहता है, इवेपोरेशन ज़्यादा रहता है. बट विथ द टाइम एज मोर एंड मोर वेपर्स आर फॉर्म्ड, द रेट ऑफ इवेपोरेशन गोज डाउन and the condensation rate increases. Usually two rates becomes equal. This gives rise to condensation or constant vapor pressure. This state is known as equilibrium state. देखो, एक वाटर है, वाटर इज इवेपोरेटेड and evaporated water is again cooled into liquid state. So in between this they will attain equilibrium. So equilibrium में सब रहते हैं. So that stage is called as equilibrium state. In this state, the number of molecules leaving the liquid surface equal to number those return to liquid from the vapor state. देखो, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कि जो क्या कर रहे हैं, दे आर लिविंग द लिक्विड सरफेस, उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और एटम्स है कि जो दे विल गो टू और दे दीज रिटर्न टू लिक्विड फेस और वेपर. So across the interface there is a lot of activity between the liquid and the vapor. This state, when the rate of evaporation is equal to rate of condensation, is called equilibrium state. तो एक ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब भी कंडेंसेशन और इवेपोरेशन इक्वल हो जाते हैं. सो इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज H2O. इट विल गिव H2O. लेकिन पहले जो H2O है वो लिक्विड स्टेट में है, अभी जो है वो गैसियस स्टेट में या फिर वेपर स्टेट में है. एट इक्विलिब्रियम द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसियस वाटर मॉलिक्यूल्स एट ए गिवन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट. यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है. नोन एज इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, दैट इज सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और एक्वेस टेंशन. द saturated vapor pressure increased with the increase of temperature.
In the case of water, the saturated vapor pressure is 1.013 bar, that is 1 atmosphere at 100 degrees Celsius. Therefore, water boils at 100 degrees Celsius when exposed to 1 atmospheric pressure. देखो सैचुरेटेड पे देखो वाटर जो है उसका सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होता है 1.013 बार at 100 degree Celsius, means when water is boiling. So water boils at 100 degree Celsius, तो उसके ऊपर प्रेशर कितना है 1 atmospheric pressure. So for any liquid at 1 atmospheric pressure, the temperature at which its saturated vapors equals to atmospheric pressure is called normal boiling point of that liquid. तो देखो ये है boiling point definition. The boiling point of water is 100 degree Celsius at 1.013 बार प्रेशर. ये यूनिट है प्रेशर मेजर करने का, बार. वेयर एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अनदर लिक्विड इज डिफरेंट. सो इथाइल अल्कोहल का 78 डिग्री सेल्सियस है. तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशंस ये है, व्हेन द so you will read this topic